بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کہانی سینٹر میں خوش آمدید۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ کو ایک معصوم لڑکی کے اوپر بیتی دکھ بھری سچی کہانی سنانے چاہ رہی ہوں، لیکن کہانی سنانے سے پہلے نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ اردو کہانی سینٹر کو سبسکرائب کیجیے اور ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو کلک کیجیے۔ چلیے شروع کرتے ہیں کہانی۔ یہ سال 2009 کی بات ہے۔ میں دبئی میں روزگار کے سلسلے میں رہا کرتا تھا۔ مجھے قدرتی طور پر زیادہ دوست بنانے کی عادت نہیں تھی۔ گھر والوں کی یاد آتی تو دبئی کی گلیوں پر رات کو ہوا خوری کرنے نکل جاتا۔ یہاں کی راتیں بھی جاگتی تھیں اور دن بھی۔ رات کا ماحول بڑا ہی پرکیف ہوتا تھا۔ میں تو اکثر ہوا خوری کے لیے نکلتا تو رات کے 12 بجے واپس لوٹتا۔ ایک دن معمول کے مطابق جا رہا تھا۔ یہ رات کے تقریباً 10 بجے تھے کہ مجھے ایک لڑکی سڑک کے کنارے بیٹھی ہوئی نظر آئی۔ ویسے تو یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی، لیکن غیر معمولی اور متوجہ کر دینے والا اس کا لباس تھا، جس نے لال عروسی جوڑا پہن رکھا تھا، اور یہ واقعی ایک عام بات نہیں تھی۔ دبئی میں لڑکیاں کافی ماڈرن قسم کی ہوتی ہیں اور ان کے لباس بھی مغربی طرز کے ہوتے ہیں، لیکن یہ لڑکی عروسی لباس میں ملبوس تھی، اور یہ لال عروسی جوڑا ہمارے ملک کی اور ہمارے کلچر کی پہچان تھی۔ میں نے جب یہ دیکھا تو بے اختیار میرے قدم رک گئے۔ پہلے میں نے دور سے اس لڑکی کو دیکھا۔ وہ اپنے چہرے کے رنگ اور نین نقش سے پاکستانی معلوم ہوتی تھی۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے قریب چلا گیا۔ جا کر دیکھا تو وہ اپنے دونوں ہاتھوں میں اپنا چہرہ دیے بری طرح رو رہی تھی۔ اس کا وجود ہچکیوں کی زد میں ہل رہا تھا۔ میں اسے دیکھ کر سکتے میں آ گیا۔ میں انتظار کرنے لگا کہ وہ رو کر خاموش ہو تو اس سے بات کروں، لیکن اس کا رونا ختم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ بالآخر میں نے اسے خود ہی جھنجھوڑا۔ سنیے بہن جی، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ میرے کہنے پر لڑکی نے چونک کر مجھے دیکھا، گویا اسے اس اجنبی شہر میں امید کی کوئی کرن نظر آ گئی ہو۔ وہ چہرے پر بے یقینی لیے میری طرف دیکھ رہی تھی کہ میں نے اسے وہاں سے اٹھنے کا اشارہ کیا۔ یہ علاقہ نسبتاً غیر محفوظ تھا۔ یہاں سے کچھ ہی فاصلے پر غیر قانونی لوگوں کی رہائش گاہیں تھیں، اور کچھ ایسے جرائم پیشہ بھارتی، بنگلہ دیشی اور پاکستانی لوگ بھی رہتے تھے جنہیں دبئی کی پولیس ہر وقت تلاش کرتی رہتی تھی۔ میں نے اس لڑکی کو مختصراً ساری صورتحال بتا کر اپنے ساتھ چلنے کا کہا، کیونکہ میں جانتا تھا یہاں اس لڑکی کی عزت بھی محفوظ نہیں۔ میرے کہنے پر وہ اٹھ کر میرے ساتھ چلنے تو لگی، لیکن وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ اس کی سانسیں پھولی ہوئی تھیں اور ہاتھ کانپ رہے تھے۔ وہ بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہی تھی، جس سے اس کے شدید ڈر کا اندازہ ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر چلنے کے بعد میرا فلیٹ آ گیا۔ میں نے کمرہ کھولا اور اسے اندر لے گیا۔ شکر کیا کہ آج کوئی دوست نہیں آیا ہوا تھا، ورنہ مشکل ہو جاتی۔ میں نے اسے پینے کے لیے پانی دیا اور اسے بغور دیکھنے لگا۔ وہ مجھے بہت ہی زیادہ معصوم اور بھولی بھالی لگ رہی تھی۔ پانی پی کر اس کی طبیعت کچھ بحال ہوئی تو میں نے اس سے دوبارہ سوال کیا، اب بتاؤ، میں تمہاری کوئی مدد کر سکتا ہوں تو ضرور کروں گا۔ تم مجھے ایک شریف گھرانے کی بیٹی لگتی ہو۔ میرے کہنے پر وہ رونے لگی اور روتے ہوئے اپنی کہانی سنا دی۔ جی، میرا نام شبانہ ہے۔ مجھے یہاں اپنا برا نصیب اور میری اپنی نادانیاں لے آئی ہیں۔ وہ باتیں کرتے کرتے کہیں کھو سی گئی تھی۔ اس کی ساری باتوں کا خلاصہ میں آپ کو اسی کی زبانی سناتا ہوں۔ میرا نام شبانہ ہے۔ میری شادی اس وقت ہوئی جب میری عمر تقریباً 15 سال تھی۔ میں نے اپنی شادی کے وقت کبھی نہیں سوچا تھا کہ مجھے اپنے شوہر کی بے رخی سہنا پڑے گی۔ میں بہت نازک احساسات لیے شادی کے بندھن میں بندھی تھی، مگر مجھے کیا پتا تھا کہ شادی کا یہ بندھن میرے لیے اذیت ناک ثابت ہوگا۔ شادی کی رات میرے شوہر نے مجھ سے 1000 وعدے کیے، ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھائیں اور مجھ پر محبت کی برسات کر دی۔ میں تو ان کی محبت میں خود کو دنیا کی خوش نصیب ترین لڑکی سمجھنے لگی۔ کبھی گمان نہیں کیا تھا کہ میں اور اسفند ایک دوسرے سے جدا ہوں گے۔ ہماری جوڑی سورج چاند کی جوڑی تھی۔ ولیمے والے دن میں اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ ان کی نظریں بھی مجھ سے ہٹ نہیں پا رہی تھیں، جبکہ میری ساس شاید اس رشتے سے خوش نہیں تھیں، حالانکہ وہ مجھے بڑے مان اور بڑی چاہ سے بیاہ کر لائی تھیں۔ بہرحال کچھ اچھی اور کچھ بری نظروں کی زد میں رخصت ہو کر اپنے سسرال، اپنے شوہر کے گھر آ گئی۔ شادی کے دوسرے ہی دن مجھے محسوس ہوا
कि मेरी सास मेरे शौहर को अपने कमरे में बुलाकर बार बार समझाती हैं। अब वो क्या समझाती थी ये तो कभी मेरी समझ में नहीं आ सका, लेकिन मेरी खुशियाँ आरज़ी ही साबित हुईं, क्योंकि शादी के ठीक 1 हफ्ते बाद मेरे शौहर की बैरून मुल्क से कॉल आ गई। मैं इस सब से बिल्कुल बेखबर थी। मैं नहीं जानती थी कि शादी की ये खुशियाँ चंद दिन की होंगी। मैंने असफन से बात की तो कहने लगे कि मैं रोज़गार की खातिर तुम्हारे और अम्मा के लिए ही जा रहा हूँ। हमारे बच्चे होंगे तो उन्हें क्या खिलाएंगे। उन्होंने बात ही कुछ इस अंदाज से की कि मुझे तो अपनी हया की पड़ गई। मैंने दोबारा उनसे सवाल नहीं किया, लेकिन वो रात मैंने कांटों पर गुजारी। मुझे हर लम्हा यही डर लगा रहता कि असफन मुझे छोड़कर चले जाएंगे। बिलाखिर वो घड़ी भी आन पहुंची जब असफन जाने के लिए घर से तैयारी बांध रहे थे। मेरी तो मानो वो हालत थी कि काटो तो बदन में लहू नहीं, खून जैसे किसी ने निचोड़ लिया था। दिल की धड़कन जैसे कोई साथ लेकर जा रहा था। 1 हफ्ते का ये बंधन मेरी पूरी जिंदगी पर भारी था। मैं उन जज्बात की, एहसासात की शिद्दत को महसूस करते हुए असफन को रोकना चाहती भी तो आंखों से आंसू पहले छलक पड़ते। शादी से पहले मुझे नहीं मालूम था कि मेरे शौहर की नौकरी के सिलसिले में मुझसे दूर जाना पड़ेगा। बहरहाल दुआओं के साए में मेरे शौहर को मेरी सास ने अलविदा किया तो मैंने हमेशा के लिए उनके इंतज़ार की ठान ली। मगर चंद दिन ही गुजरे थे कि उनकी याद सताने लगी। दिल इस कदर घबराता कि बार बार उनकी चीज़ें देखती। जब मेरी सास ने मेरी ये हालत देखी तो बजाय तसल्ली देने के उल्टा मुझे ताने देने लगी। कहने लगी, हमारे ज़माने की औरतें बड़ी ही बाहया थीं, शौहर का नाम भी अपनी ज़ुबान से नहीं लेती थीं, लेकिन नए ज़माने की लड़कियों को ज़रा भी हया नहीं है। वो अपने जज्बात का खुल्लम खुल्ला इजहार करती हैं। सास की बातों पर मैं कुढ़ने की बजाय दिल ही दिल में दुआ करती कि अल्लाह मुझे मेरे शौहर से मिलवा दे। अगले दिन मैं उठी तो सास के तेवर बिगड़े हुए थे। सर से पांव तक मेरा जायजा लेकर बोली, तुम्हें किसने कहा है कि बन संवर कर रहो? जानती नहीं हो तुम्हारा शौहर परदेश में चला गया है। वो यहाँ होता तो और बात थी। तुम्हारे सजने संवरने का अब कोई मकसद नहीं है। अपने कपड़े बदलो और दोबारा मेहंदी लगाने की जुर्रत मत करना। सास की इस बात पर मेरा तो दिल किरची किरची होकर रह गया। मैं सोचने लगी कि मेरे माँ बाप क्या सोचेंगे कि बेटी मैके में खुश नहीं है। बहरहाल सास का हुक्म माने बगैर भी चारा नहीं था। मैंने यूं सादगी की चादर ओढ़ ली जैसे मैं सुहागन नहीं, बेवा हूँ। सास को भी शायद मुझे इसी हालत में देखकर सुकून मिलता था। मेरी सास की आदत थी कि वो अक्सर ही सरे शाम मोहल्ले की औरतों के साथ पार्क में वॉक करने निकल जाया करती थी। उस वक्त मैं घर में अकेली होती थी। आसपास कोई न होता तो तन्हाई काट खाने को दौड़ती। एक दिन सास अम्मा के घर से जाते ही दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने लपक कर दरवाज़ा खोला तो देखा सामने उबैदुल्ला खड़ा था। उबैदुल्ला से मेरा तारुफ 1 हफ्ता पहले ही हुआ था, मगर मैं ये जान गई थी कि शादी वाले दिन से लेकर आज तक उसकी नज़रें मुझ पर ही टिकी होती थीं। मैंने कई बार उसकी आंखों को अपने वजूद पर फिसलता हुआ महसूस किया, मगर मैं चुप रही। जानती थी कि उसे समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है। हमारे यहाँ अक्सर मर्द औरतों के इस तरह के रद्द-ए-अमल पर और महसूस होते हैं और इसीलिए मैं भी चुप रही। मगर मेरी चुप को न जाने उसने क्या समझ लिया कि आज मेरी सास की गैर मौजूदगी में अकेले ही मुझसे मिलने चले आया। न चाहते हुए भी उसे अंदर आने का कह दिया। मेरी सास अपने रिश्तेदारों की बहुत इज्जत करती थी। मैंने सोचा बाद में मेरी शिकायत लगाकर कहीं मुझे अपनी सास के हाथों जलील ही न करवा दे। उबैदुल्ला अंदर आया तो मैंने चाय पानी का पूछा, मगर वो तो जैसे मेरी गमगुसारी करने आया था। मुझे देखकर अफसरदा लहजे में बोला, ये तुमने अपनी क्या हालत बना ली है शबाना। देखो तो कैसे फूल सा खिलता चेहरा था तुम्हारा और आज कितनी मुरझाई हुई लग रही हो। क्या बात है, मुझे बताओ। कोई परेशानी है तो मैं असफन को आगाह कर दूंगा। उसने कुछ इस एतमाद से बात कही कि मैं उस पर यकीन कर बैठी। मैं यकदम खिल उठी। असफन से तुम्हारा राब्ता है भाई? मेरे कहने पर वो और चौड़ा हो गया। हाँ तो तुम क्या समझती हो, असफन मेरा बचपन का यार है। हम साथ खेले कूदे पले बढ़े हैं, लेकिन मसला ये है कि मेरे पास फ़ोन वगैरह नहीं है। तुम अगर चाहोगी तो उससे राब्ता करवा दूंगा। उसने कुछ रुके रुके अंदाज में कहा। मैं समझ गई कि वो मेरी मदद करने का कह रहा है, क्योंकि अपने भाई यानी कि अपने दोस्त असफन की बहुत इज्जत करता था। मैं उसकी बात सुनकर खुश हो गई। उसे खूब अच्छी सी चाय बना कर दी।
चाय पीकर वो बहुत खुश हुआ। कहने लगा, मैं जल्द ही तुम्हारी असफन से बात करवाऊंगा। बताती चलूं कि मेरी सास रज़िया बेगम मुझे अपने शौहर से फ़ोन पर बात नहीं करने देती थी। जब भी उनका फ़ोन आता, वो मुझसे बात करने का कहते तो वो असफन से कोई न कोई बहाना कर देती। कभी कहती कि वो सो रही है, या कभी ये कहती कि अपनी माँ के घर गई हुई है। मेरे सामने मेरी बुराइयां करती, मगर मैं कुछ कह भी न सकती। मेरा दिल रोता कि मेरा शौहर मुझसे बदगुमान हो रहा है, मगर मेरी सास का रवैया और रोब इस कदर था कि मैं उनके होते हुए असफन से बात नहीं कर सकती थी। जाने से पहले असफन ने घर में फ़ोन लगवाया था कि मुझसे बात कर लिया करेंगे, लेकिन अम्मा जी ने वो फ़ोन अपने कब्जे में कर लिया। बहरहाल अब मुझे उबैदुल्ला के आने का इंतज़ार था। अगले दिन मेरी सास के जाने के बाद उबैदुल्ला दोबारा हमारे घर के दरवाजे पर आ गया। मैं उसे जल्दी से अंदर ले आई। उसने बताया कि असफन से बात करने का एक ही इंतज़ाम और एक ही हल है कि तुम मेरे साथ करीबी पीसीओ पर चलो, क्योंकि मेरे पास भी फ़ोन नहीं है। मेरे दोस्त का पीसीओ है, वो तुम्हारी बात करवा देगा। असफन से कल मैंने फ़ोन करके कह दिया था कि वो फलां वक्त पर कॉल करे। और हाँ, तुम ये बात फुफ्फो को मत बताना, वो तो नहीं चाहती कि तुम असफन से बात करो। बात करोगी तो मेरी शामत आ जाएगी, फिर कभी तुम्हें लेकर नहीं जा सकूँगा। खैर, उबैदुल्ला मुझे उस दिन शाम को चुपके से करीब ही वाक़े पीसीओ पर ले गया, जहाँ पर मैंने और असफन ने बात करनी थी। मैं बहुत खुश थी। वो मुझे एक छोटे से कमरे में लेकर गया। कमरे में अजीब सा अंधेरा था। मुझे यहाँ पर अजीब सी घुटन का एहसास हो रहा था। मैंने देखा उस कमरे से मुल्हिका एक बड़ा कमरा भी मौजूद था, जहाँ पर खतरनाक किस्म के बड़ी बड़ी मूंछों वाले कुछ आदमी बैठे हुए थे। मैंने देखा वो आदमी शीशे की उस बार में मुसलसल मुझे ही देख रहे थे। मुझे उनकी नज़रें देखकर बहुत उलझन हो रही थी। न जाने क्यों उनकी आंखों से अजीब सी टपकती वहशत ने मुझे एक लम्हे में खौफजदा कर दिया। मैं बड़ी बेताबी से असफन के फ़ोन का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन उनका फ़ोन नहीं आ रहा था। मेरी बेताबी बढ़ती जा रही थी। बिलाखिर जब मुझे महसूस हुआ कि रात का अंधेरा भी बढ़ रहा है और इन लोगों की नज़रें भी अजीब से अजीब तर होती जा रही हैं, तो मैंने वहाँ से निकलने में ही आफियत जानी। मुझे उबैदुल्ला पर सख्त गुस्सा आ रहा था। वो मुझे इस बूथ में खड़ा करके खुद उन लोगों से गप्पू में मसरूफ़ हो गया। मेरी तरफ उसकी पुश्त थी, उसे इशारा भी नहीं कर सकती थी, और उन लोगों का चेहरा मेरी तरफ था। उनकी गलीज़ नज़रें मुझसे बर्दाश्त न हुई। मैं पीसीओ से निकल आई। उबैदुल्ला को भी साथ आने का नहीं कहा। घर आकर मैं खूब रोई कि अपने शौहर से बात करने के लिए कितना तड़पना पड़ रहा है, लेकिन मैं नाउम्मीद नहीं हुई। अगले दिन उबैदुल्ला फिर आ गया। कहने लगा, तुमने बड़ी बेवकूफ़ी कर दी। मैं उससे नाराज़ थी, लेकिन उसकी बात सुनकर उसकी तरफ मुतवज्जे हो गई। कहने लगा, तुमने गलती की। मैंने तुम्हें जाते हुए उस वक्त देखा जब तुम काफ़ी दूर जा चुकी थी। उसी वक्त फ़ोन की घंटी बजी। मैंने उठाया तो असफन का फ़ोन था। मैंने फ़ोन उठाया तो वो तुम्हारा पूछ रहा था। कह रहा था कि शायद तुम उससे बात ही नहीं करना चाहती, इसीलिए बहाने बनाती हो। मैंने उसे लाख यकीन दिलाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मान रहा था। उबैदुल्ला ने कहा तो मेरा दिल जैसे किसी मुट्ठी में आ गया हो। मेरा शौहर मुझसे फिर बदगुमान हो रहा था। मैं क्या कर सकती थी? उबैदुल्ला के आगे हाथ जोड़ दिए। खुदा के लिए उबैदुल्ला, मेरी अपने शौहर से बात का कोई बंदोबस्त कर दो। कोई चिट्ठी ही लिख के उसके हवाले कर दो। मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि मैं उनसे बात करना चाहती हूँ, लेकिन अम्मा जी मुझे बात नहीं करने देना चाहती। मैंने कहा तो उबैदुल्ला सोच में पड़ गया। अच्छा ठीक है, मैं उससे बात कर लूँगा, तुम्हें परेशान होने की फ़िक्र नहीं। अब मैं उबैदुल्ला के आने का शिद्दत से इंतज़ार करती कि जब वो घर आएगा तो मेरे शौहर असफन की कोई न कोई खबर लाएगा। वो भी काफ़ी चालाक था। सास के जाने के बाद अकेले में मुझसे आकर बात कर लेता। उसके इस रवैये से मैं बड़ी खुश थी। दिन यूं ही गुजरते जा रहे थे। कुछ दिन बाद उबैदुल्ला आया तो उसने मुझे बताया कि असफन मुझे अपने पास दुबई बुलवाना चाहते हैं। उन्हें भी मेरी उतनी ही याद सताती है जितना मैं उनके लिए तड़पती हूँ। उबैदुल्ला ने बताया कि मेरे शौहर ने कहा है कि उससे अपनी माँ के रवैये का अंदाज़ा है, सो वो मुझे अपने पास बुलाना चाहते हैं, लेकिन इस बात का उनकी माँ यानी कि मेरी सास को पता न चले। उबैदुल्ला के मुंह से ये खबर सुनकर
मैं तो खुशी से फूले न समा रही थी। अपने शौहर की कुर्बत का ख्याल ही मुझे खुशी से पागल कर रहा था। बहरहाल उबैदुल्लाह ने मुझसे कहा कि पासपोर्ट और कुछ ज़रूरी कागजात बनवाने होंगे, उसके बाद मैं अपने शौहर के पास जा सकूंगी। मैंने जोश व खरोश से तैयारियां शुरू कर दी। अगले दिन सास अपने किसी काम से गई तो मैं उबैदुल्लाह के साथ पासपोर्ट ऑफिस चली गई, लेकिन ऑफिस बंद था। 3 महीने और इंतज़ार करना पड़ा। एक बार मेरी सास की सहेली की किसी बेटी की शादी थी। उस दिन इन्होंने दिन के वक्त ही वहाँ जाना था। गांव के घरों में शादियां दिन के वक्त ही हुआ करती हैं। बहरहाल सुबह 12 बजे वो शादी में निकली तो मैं उबैदुल्लाह के साथ पासपोर्ट ऑफिस चली गई। उसने मेरे ज़रूरी कागजात बनवाए। मैंने अपनी अंगूठी बेचकर उसके पैसे अदा किए, क्योंकि मैं जानती थी मेरे शौहर ने अभी तक उसे पैसे नहीं भेजे। इन्होंने सरसरी ही कह दिया होगा कि कागजात बनवा लूं। उबैदुल्लाह ने कहा कि तुम्हारे कागजात बन गए हैं, यहाँ से निकलने में 6 महीने का वक्त लग सकता है। ये 6 महीने मैंने इंतज़ार की सूली पर लटक कर गुजारे। मैं एक एक दिन अपने शौहर से करीब होने का तसव्वुर करती और फिर दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा करती। आखिर ये 6 महीने भी बीत गए। उबैदुल्लाह ने मुझे बताया कि हमें रात के वक्त यहाँ से निकलना होगा। मेरे लिए ये कदम उठाना आसान नहीं था, लेकिन फिर भी मैं किसी को बता नहीं सकती थी। अपने शौहर के पास ही तो जा रही थी, कौन सा कोई जुर्म कर रही थी। रात के वक्त बिला किसी खौफ व खतर मैंने अपना छोटा सा अटैची केस तैयार किया, अपने कागजात लिए और उबैदुल्लाह के यहाँ अपने घर की दहलीज पार कर ली। मैं समझी थी कि उबैदुल्लाह मुझे किसी एयरपोर्ट पर लेकर आएगा, लेकिन वो नहीं हुआ। मुझे उसने एक अजीब व गरीब किस्म की गाड़ी में बिठाया। ये ट्रक नुमा गाड़ी थी। यहाँ तो मेरा दम घुटने लगा। 6 घंटे के मुसलसल सफ़र के बाद उबैदुल्लाह मुझे कराची शहर ले आया। यहाँ बंदरगाह पर अजीबो गरीब माहौल था। लोगों की बातें छोड़िए, उनके चेहरे देखकर ही मैं डर गई थी। किश्ती के सफ़र के ज़रिए मैं किन मराहिल से गुजरकर दुबई पहुँची, ये एक अलग ही कहानी है। रास्ते में कई मुश्किलात दरपेश आईं, यहाँ तक के पाँव में छाले पड़ गए। मैंने सोचा नहीं था कि मेरे शौहर से मिलना मुझे इस कदर महंगा पड़ सकता है। कई बार मुझे लगा कि मेरी ज़िंदगी की बस चंद सांसें बाकी हैं। बहरहाल मुश्किल से दुबई के किनारे पर पहुँचे तो उबैदुल्लाह मुझे लेकर एक होटल में आ गया। मैं उसके रहमो करम पर थी, मुझे इन चीज़ों का कहाँ पता था। बहरहाल उबैदुल्लाह मुझे एक होटल पर लेकर आया। उसने 2-3 दिन मुझे यहाँ रखा। मैं असफंद का पूछती रही, वो मुझे सख्ती से चुप करवा देता। फिर एक दिन मुझे उसने खुशखबरी सुनाई। कहने लगा, तुम उरूसी जोड़ा पहनकर तैयार हो जाओ। ये भारतीय तर्ज का एक जोड़ा था। उसने मुझे दिया और कहा, तुम्हारा शौहर तुमसे मिलने आ रहा है। वो आज रात तुम्हारे साथ यहीं पर गुजारेगा और फिर कल तुम लोग उसकी रिहाइशगाह पर चले जाना। उबैदुल्लाह की ये बात सुनकर मैं तो फूले न समाई। मैंने खूब अच्छी तरह खुद को तैयार किया, दुल्हन की तरह सजाया संवारा कि शादी के 1 हफ्ते बाद ही तो हम जुदा हो गए थे। होटल का कमरा भी शानदार था, पूरी तरह सजा हुआ था। मैं किसी नई नवेली दुल्हन की तरह घूंघट निकाल कर बैठ गई। मेरे अंग अंग से खुशियाँ फूट रही थीं। तभी दरवाज़ा बंद करने की आवाज़ पर मैंने हल्का सा सर उठाकर देखा। घूंघट से मुझे उस शख्स के हाथ ही नजर आए जो मेरी तरफ बढ़ रहा था। मैं हज़ारों नहीं लाखों में अपने शौहर असफंद के हाथ पहचान सकती थी। वो असफंद तो नहीं था, वो उर्दू बोलने वाला मगर इंतहाई अनजान और अजनबी शख्स था जिसे मैं पहली बार देख रही थी। उसे देखकर मेरे तो पाँव तले से ज़मीन खिसक गई। सोचा नहीं था कि उबैदुल्लाह मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करेगा। उस वक्त मैंने शिद्दत दिल से अपने रब को पुकारा कि मैं अपने शौहर की याद में, अपने शौहर की मोहब्बत में, उसकी फर्माबरदारी में हज़ारों मील पैदल चलकर आई और यहाँ मेरे साथ किस्मत ने क्या खेल खेला। मेरी दर्द भरी आहों को रब ताला ने सुन लिया। उसी वक्त न जाने क्या हुआ, होटल में ऐसी भगदड़ मची कि मुझे वहाँ से निकलने का मौका मिल गया। वहाँ से भागकर मैं यहाँ आ बैठी। आकर कुछ घुटन कम होने का एहसास हुआ। अल्लाह से दुआ कर रही थी कि वो किसी नेक शख्स को मुझसे मिला दे जो मुझे असफंद तक पहुँचाए। आपके साथ बिना कोई सवाल किए इसीलिए चली आई क्योंकि मुझे यकीन था कि आपको अल्लाह ने मेरी तरफ भेजा है। मैं शबाना के तवक्कुल पर हैरान रह गया कि उसे अल्लाह पर कितना यकीन था। बहरहाल मैंने उसकी कहानी सुनने के बाद उसके शौहर को बड़ी मुश्किलों से तलाश किया। उसे यहाँ के निज़ाम का कुछ भी पता नहीं था। खुशकिस्मती से कुछ दिन की भागदौड़ से उसका पासपोर्ट भी हमें मिल गया।
میں نے اسے اس کے شوہر تک پہنچایا تو انہوں نے یہ بتا کر ہمیں حیران کر دیا کہ عبید اللہ سے ان کی کوئی بات چیت نہیں ہوئی، نہ ہی انہوں نے شبانہ کو دبئی بلانے کی بات کی تھی، لیکن قدرت نے ان دونوں کو ملانا تھا، سو دونوں پھر سے ایک ہو گئے۔ ان دونوں کو خوش دیکھ کر مجھے بھی مسرت کا نیا احساس ہوا اور میں ایک خوشگوار جذبہ لیے وہاں سے چلا آیا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔